हाँ जी स्टूडेंट, एक बार मैं बात करना चाहूँगा। जहाना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर। तो एक बार बताइए, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने कराया है ये सब, आर वी कंफर्टेबल चाहना। यस सर। तो स्टूडेंट देखिए, एक बार जो भी लास्ट क्लास के अंदर हुआ था, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस कंसेप्ट। देखिए, एक तो मैंने कराया है, क्या कहते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यस चाहना, एक तो ये यस। सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था रॉड कंस्ट्रेंट वाज द लास्ट पॉइंट। एनी डाउट स्टूडेंट किसी को भी हो अगर अभी तक रॉड कंस्ट्रेंट तक? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल नाउ? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ओके, sir. गुड आफ्टरनून। यस चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन वंस अगेन। यस सर। तो एक बार बताइए, रॉड कंस्ट्रेंट और उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आर वी कंफर्टेबल इन ऑल द क्वेश्चंस? एक बार बताइए। यस सर। चलिए, एक काम करेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर मैं आगे सूडो फोर्स थोड़ा लग जाए कि आप लोगों को सब चीजें याद हैं, भूले नहीं। सॉल्व वन क्वेश्चन फर्स्ट। मान्यता, प्लीज बी ऑन द लाइन। मान्यता, मान्यता, आर यू देयर? Yes sir. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Good afternoon sir. Good afternoon. Manita, we are given there is a block here which is having mass of 5 kg and it is connected with a string which is passing over a pulley like this, and we are given there is another pulley here and 2 blocks connected with a string are attached here like this, Manita. Yes sir. And suppose this block is having mass 5 kg and this block is having mass 2 kg. We have to find out acceleration of all the 3 blocks separately. Let us say this is your block A, this is your block B, and this is your block C. So if system is released, find out acceleration of all the 3 blocks separately.
If system is released, then find out acceleration of all the three blocks separately. Then इसके बाद student, I will start pseudo force. Solve this question first. Good evening, sir. Yes, good evening. Hanji students, any answer of this question? Any answer? Anyone has? सर मेरे को एक डाउट था सर, मैंने आपको व्हाट्सएप करा था, आप एक बार देख लेते। अभी बात कर लेंगे माधव बेटा, क्लास के बाद बात करेंगे जो भी है, ठीक है? हाँ जी, एनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? पलक मित्तल, एनी आंसर हियर? पलक मित्तल? ओके। भव्या, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है अभी। यस भव्या। हरजोत, एनी आंसर? हरजोत? No, sir. Yes, Taranjot. If you are getting any answer, you can share with me. Taranjot. Sir, I'm solving. Should I discuss this question? Manita. So I'm doing. Yes, Kifaya has shared 2 kg block is having acceleration. She is sharing 10/3 in the downward direction. Devang Garg. Devang, should I discuss this question? Devang Garg. इसमें क्वेश्चंस बन गई पर वो आगे सॉल्व नहीं हुआ इक्वेशंस के। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो यार, जब तक आप पीछे, मैंने असाइनमेंट शेयर करता हूँ और आप लोग असाइनमेंट करते नहीं हो पीछे, ये तुम्हारे पेरेंट्स की भी कंप्लेंट है कि होमवर्क नहीं करते। Chahana Malik, please be on the line. I will discuss with you. Yes, Chahana, please be on the line. Can I say, Chahana, let us say T is tension in this string. Yes. Let us say. So how much tension I will consider in this string? 2T. Will, yes, 2T. और चाहना जब दो ब्लॉक होते हैं तो मैंने आपको सिखा रखा है कि आप एक्सेलरेशन को टेंशन के अपोजिट रेशो में कर देते हैं, इनवर्स रेशो में। बट हियर वी आर हैविंग 3 ब्लॉक्स, चाहना मलिक। Yes, sir. So we cannot do it directly. तो यहाँ पर हमें तीनों ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करना होगा। चाहना, let us say this block is having acceleration a1 towards right hand side, and इसको मैं कुछ assume कर लेता हूँ a2 in upward direction, and this I am assuming a3 in downward direction. You agree with me? Yes, sir. तो चाहना सबसे पहले C block से start करते हैं। C block is having how much weight? 5 kg का जो block है, is it not 50 Newton? Yes, sir. So can I write down 50 minus T is equal to mass into acceleration? Can I say 5 into A3, first equation? Yes, sir. What is the equation I can write down for B, 2 kg block? इस पर weight act कर रहा है 20 Newton downward, 2 kg है because. So can I write down T minus 20 is the net force in upward direction? और ये किसके इक्वल होगा जल्दी बताइए?
2A2. Can I say 2A2? Yes. और जो third block है, block A, it is moving perfectly along horizontal direction. So which force is responsible for the motion here for block A? Tension. Is it not 2T? Tension. That will be equal to how much? Mass into acceleration. क्योंकि gravity नहीं लेंगे, horizontal move कर रहा है. Are you comfortable in the three equations? Yes, sir. So, but I have four variables T, A1, A2, A3. Fourth equation जल्दी से बताइए कौन सी लिखूंगा? फटाफट fast. Fourth equation. Yes, I'm waiting. What is the fourth equation I can write down here? Yes, student, this is the open question to everyone. What is the So fourth virtual equation work I done can write? Yes, Abhinav Sagar. I will apply तीनों ब्लॉक पर जो combined होगा T dot A, sum of T dot A, that must be equal to 0. You agree with me, Abhinav Sagar? Yes, sir. Yes, Abhinav. Abhinav, start करते हैं बेटा ब्लॉक A से. ब्लॉक A पर जल्दी से बताइए टेंशन इज 2T. अभिनव. Yes, sir. और 2T राइट में है और एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड्स राइट, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव लिखूंगा 2T A1. नाउ कम टू ब्लॉक बी. ब्लॉक बी पर जल्दी से आइए अभिनव सागर. टेंशन इज अपवर्ड पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन भी ऊपर है तो प्लस TA2. और लास्ट में आ जाइए A3 पर, जल्दी से बताइए. कैन आई से, क्योंकि टेंशन इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव साइन के साथ माइनस TA3 विल बी इक्वल टू 0. कैन आई से 2A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू A3? अभिनव. यस सर. टेंशन कॉमन लेके कैंसिल आउट. बच्चे इन फोर इक्वेशन को प्लीज सॉल्व. यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन A1, A2, A3 सेपरेटली. और जो डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, अभिनव ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आंसर आपका डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली परफेक्ट होगा. बट इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव आंसर फॉर एनी एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए पूरी क्लास को. तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. यस, तो एक बार सॉल्व कीजिए प्लीज स्टूडेंट ऑल द फोर इक्वेशन एंड प्लीज लेट मी नो द आंसर. जल्दी बताइए मुझे. सॉल्व ऑल द फोर इक्वेशंस. यस मान्यता, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? मान्यता, आई एम वेटिंग. देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, पीछे तो सेल्फ स्टडी है ही नहीं कुछ भी. यस मान्यता, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? Yes, Ridhima, any answer, Ridhima? कर रही हूँ सर. Okay. अनहद, आप भेजिए बच्चे, क्या आंसर आ रहे हैं आपके? अनहद. सर 2 है. देवांग गर्ग, प्लीज बी ऑन द लाइन. देवांग गर्ग. यस सर. देवांग, फर्स्ट इक्वेशन से बेटा A3 निकाल, सेकंड से A2, फर्स्ट से A1, थर्ड से. तीनों को A1, A2, A3 की इक्वेशंस को उठा के फोर्थ में पुट कर दे, तो क्या टेंशन सॉल्व करके आ जाएगी कि नहीं, ये बताएं. इस तरह आ जाएगी. मैं भी करता हूं. थोड़ा हैबिट डेवलप करो यार. बिल्कुल नहीं है आदत पढ़ने की. 10th में तो वैसे ही छूट गए एक साल, और अब भी ऑनलाइन चल रहा है, तो बिल्कुल हैबिचुअल नहीं है काम करने की. मैं पूरी कैलकुलेशन मुझे सॉल्व चाहिए प्लीज. बिल्कुल यूज टू नहीं हो काम करने के आप सब लोग, मोस्ट ऑफ यू. हर्ष, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. हर्ष विश्वनाथ. यस हर्ष, एम आई ऑडिबल? हर्ष. यस सर. हर्ष जल्दी से A3 फर्स्ट इक्वेशन से मैं निकाल देता हूँ. A3 कितना आ जाएगा जल्दी? A3 will it not be 50 minus T by 5? हर्ष. सेकंड इक्वेशन से A2 बता देता हूँ. That will be T minus 20 by 2. और थर्ड इक्वेशन से A1 आ जाएगा. A1 is equal to 2T by 5. हर्ष A1, A2, A3 सबको उठा के फोर्थ में पुट कर, और सॉल्व करके T आएगा. T से फिर एक्सेलरेशन आएंगे. जल्दी कीजिए प्लीज. ओके सर. Student, is my voice lagging? No sir. Okay. So Kifaya, what is the answer I should write down finally? Kifaya, as per my direction, जो मैंने assume की है. How much is A1? Negative 50 by 15. Negative it cannot be, Kifaya, because this block has to move towards right. 5 kg Sir, block. I took A1 as different variable. 2 kg block is A1. See, as per my variables, A1, what it should be? Acceleration of this. 80 by 15.
Positive. How 80. much? 80 by Oh. 15. Yes, sir. It is 80 by 15, or you can say 16 by 3. Yes, how much is A2? A2 is X. negative 50 by 15. Negative 50 by 15, or I can say minus 10 by 3. Minus sign means I will just oppose, the direction of motion will be just opposite. And what about A3, Kifaya? 110 by 15. 110 by 15, or I can say, just a minute, student, just a minute. Yes, 110 by 15, Kifaya. Yes, sir. So I can say it will be 22 by 3 meter per second square. These will be the answer, students. हाँ जी, एक बार पूरी क्लास इंश्योर करें, थोड़ा सा तुम्हें तो यूज टू कराना पड़ता है पहले लास्ट क्लास का। ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स के लिए? यस भव्यांश, भव्यांश, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? भव्यांश, भव्यांश, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Students, am I audible? Yes, sir. Any doubt further? पलक, एक बार बताइए आप, पलक मित्तल, any doubt No, further? sir. ओके फाइन। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। आज मुझे आपको कराना है सूडो फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आई थिंक पुली ब्लॉक सिस्टम के लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। आई हैव शेयर्ड द असाइनमेंट्स आल्सो। ये सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास के हैं जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ अभी। ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव डन। फाइन। चलिए एक क्वेश्चन ना सूडो फोर्स से, चलो सूडो फोर्स स्टार्ट करता हूँ, उसी में करा दूंगा, ठीक है? यस पलक मित्तल, प्लीज बी ऑन द लाइन। पलक, Yes, sir. स्टूडेंट हेडिंग इज सूडो फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। यस पलक, when pseudo force is considered, what is pseudo force if I ask you, Palak? Sir, pseudo force, sir, actually में force नहीं होता, but हम उसको force consider करते हैं, sir, balance करने के लिए। अच्छा, कब कंसीडर करते हैं? एक तरीके से काइंड ऑफ सूडो, जैसा कि नाम से दिख रहा है, इज इट ए काइंड ऑफ फॉल्स फोर्स एज यू आर सेइंग? Yes, sir. ये तो कब कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। Sir, व्हेन इट इज, यस, friction को balance करने के लिए। नहीं नहीं, अभी तो देखो फ्रिक्शन की तो सर बात ही जब मत बॉडी करो। इक्विलिब्रियम में नहीं होती। नहीं, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, व्हेन दिस फोर्स इज कंसीडर्ड। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब देख रहे होते हैं। यस यस स्टूडेंट, एक नाम मैं यूज करूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए सबसे पहले तो ये समझना है, पलक मित्तल प्लीज बी ऑन द लाइन। पलक मित्तल, Yes, sir. जिस सिस्टम में बैठ के हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम रोड पर हैं तो ग्राउंड इज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी आर सिटिंग इनसाइड ए कार एंड वी आर ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट, देन कार इज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यू एग्री विद मी और नॉट? पलक मित्तल, Yes, sir. तो पलक सबसे पहले तो मैं यहाँ कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूंगा जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is actually of two types. One is called as inertial frame of reference, inertial frame, and the second one is called as non-inertial frame. What is the difference between the two? Now we have to understand. Inertial frame means, Palak Mittal, its acceleration is equal to 0. Non-inertial frame is that frame where acceleration is not equal to 0. I mean, this is accelerating frame. Can I write down accelerating frame here? Because अगर आपके पास acceleration है तो accelerating frame होगा, and here acceleration is equal to 0. तो पलक I can write down inertial frame तो बच्चे वो होगा जो frame either rest में है या आपका constant velocity से move कर रहा है। Can I write down like this, पलक मित्तल? Yes, sir. पलक, जिसका एक्सेलरेशन 0 है तो यू विल से इनर्शियल फ्रेम is that frame of reference या that frame which is either in rest or moves with constant velocity. You agree with me, Palak Mittal? Yes, sir.
और यहाँ पर जो हम न्यूटन्स लॉ है ना वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जैसे अब तक करते आ रहे थे. Here Newton's laws are applicable directly. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसका अपना खुद का एक्सेलरेशन है बेसिकली 0, तो वो फ्रेम आइदर रेस्ट में होगा और इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. आई होप दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. Agrima, any doubt in the definition of inertial frame? Agrima. No, sir, no doubt. और अग्रिमा नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा फ्रेम है जिसके खुद के पास एक्सेलरेशन होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट आई एम राइटिंग डाउन नॉन इनर्शियल वो फ्रेम होता है इट इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन होगा. एंड हियर if we have to apply Newton's law, अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है, if we have to apply Newton's laws, then an additional force will be considered on the object which is called as pseudo force. Which is called as pseudo force. और स्टूडेंट pseudo force का एक फॉर्मूला याद रखिए प्लीज. पलक मित्तल अगेन बी ऑन द लाइन. पलक मित्तल. यस सर. देखो pseudo force का ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा जो आपको कंसीडर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. और कब pseudo force को कंसीडर कब करते हैं जल्दी बताइए पूरी क्लास को एक बार दोबारा से. When we are solving a question in नॉन इनर्शियल फ्रेम. मैं एक एग्जांपल लेके पूरा एक्सप्लेन करूंगा. तो स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको सूडो फोर्स लगाना है तो उसका फॉर्मूला होगा m into a. अब कहोगे फोर्स का फॉर्मूला तो यही होता है, तो व्हाट इज m एंड व्हाट इज a? m होगा पलक मित्तल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे. m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज a? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक तरीके से. और यू कैन से एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर आल्सो. एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे थे. तो स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी चीज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं देन वी हैव टू कंसीडर दिस एक्स्ट्रा फोर्स जिसको आप कहते हैं सूडो फोर्स, एंड इट्स एक्सप्रेशन या फॉर्मूला इज गिवन बाय simply the product of mass of that object जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं multiplied with the acceleration of your non inertial frame of reference. तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की. अब इसकी डायरेक्शन किधर लेते हैं? I will add one page here. पलक यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताइए पूरी क्लास. Yes students, up to this point are we comfortable? Yes, sir. अंशदीप सिंह. अंशदीप, what is the direction of pseudo force? अगर कहीं स्कूल में सीखा हो किस डायरेक्शन में लेते हैं pseudo force को? Yes, Anshdeep. Sir, opposite. किसके opposite? Yes, I'm waiting. Sir, the actual. Student, pseudo force on the object is taken या is considered along the direction opposite to the direction of acceleration of non-inertial frame. एक बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे कंसीडर करना है. चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir. सूडो फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेते हैं थोड़ा सा मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ. चाहना रफली बात करते हैं. फॉर एग्जांपल एक बस है जैसे ये अभी राइट नाउ रेस्ट में है. ड्राइवर ने सडनली इसको एक्सेलरेट करा, आगे स्टार्ट किया. थोड़ा सा ये बताइए, ब्लॉक रखा होता है बस के फ्लोर पर, ये ब्लॉक जो है कहाँ स्लाइड होता है सडनली बस स्टार्ट होती है? Sir, backward.
backward. How it slips backward if I ask you? Sir, एक बस सडनली स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी, अचानक से आता है, तो दिस ब्लॉक स्लिप्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हाउ डज इट हैपन? बॉक्स रेस्ट पे था जब inertia बस frame. थोड़ा और अच्छे से बताइए मयूर वशिष्ठ. देखो मयूर, यहाँ पर समझना, जब बस आपकी एक्सेलरेट होती है, मयूर प्लीज बी ऑन द लाइन. मयूर वशिष्ठ. यस सर मयूर, जैसे ही आपकी बस आगे एक्सेलरेट होगी, तो बेटा मैंने अभी आपको ये समझाया है कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सपोज वी आर इनसाइड द बस, तो हमारी बस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी. यू एग्री विद मी? यस सर तो हम जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स कंसीडर करेंगे. और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी बताइए पूरी क्लास को. मास ऑफ द Mass. ऑब्जेक्ट, अभी लिखा था मैंने लास्ट स्लाइड, मल्टीप्लाइड विद व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. Acceleration क्या बस का of frame. एक्सेलरेशन नहीं लूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज sir. सूडो फोर्स एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तभी ये ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड करेगा. ये ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर तो सूडो फोर्स एक तरीके का काइंड ऑफ फॉल्स फोर्स है, जो हमें तब कंसीडर करना होता है व्हेन वी आर इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम. और उसकी डायरेक्शन किधर लेते हैं? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम. एक बार बताइए सूडो फोर्स कब कंसीडर करते हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? तभी आप कंसीडर करेंगे व्हेन यू आर इनसाइड ए नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल का मतलब है एक्सेलरेटिंग फ्रेम. मान्यता, मान्यता, इज इट क्लियर टू यू? मान्यता. Excuse me, sir. Yes, Ridhima, you want to ask something? Yes. Yes, sir. So can you just repeat this point? Ridhima, what I have said कि when we are inside a non-inertial frame, non-inertial means एक ऐसा frame of reference which is accelerating. कोई भी कार एक्सेलरेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इनसाइड द कार आप ऑब्जर्व कर रहे थे बैठकर, तो यू विल कंसीडर सूडो फोर्सेस ऑन दोस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. रिद्धिमा, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. यस रिद्धिमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक क्वेश्चन लेता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा. आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन बेसिकली. हाँ जी, एक बार आप आइए लाइन पर. हर्ष, हर्ष कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? हर्ष. Yes, sir. हर्ष, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सो दैट डाउट क्लियर हो जाए. क्या है सूडो फोर्स? एक बार फॉर एग्जांपल देयर इज ए ट्रायंगुलर ब्लॉक. हर्ष, Yes, sir. और वो ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड सरफेस के ऊपर, एंड दिस एंगल इज गिवन एज थीटा. हर्ष, Yes, sir. आपको इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास गिवन है कैपिटल एम, एंड ए स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट ओवर इट. हर्ष, Yes, sir. दिस ब्लॉक इज हैविंग मास स्मॉल एम. ये ऐसा क्वेश्चन अभी कराया तो नहीं ना मैंने क्लास के अंदर? हर्ष, स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. हाँ जी. तो क्वेश्चन ये है कि आप पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक, और फाइंड आउट हमें ये करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द magnitude of applied force F so that small m, जो small block रखा हुआ है, that does not slide on the surface of capital M. ये आपका क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल. एक बार पहले क्वेश्चन रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन क्लियर है क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे. आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है जो पीछे से अप्लाई किया गया है, सो दैट स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ कैपिटल एम. एक बार मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा. पलक मित्तल, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन वंस अगेन? पलक मित्तल. Yes, sir. तो पलक, आपको क्वेश्चन पहले बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? Yes, sir. देखिए ये स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर टू डिफरेंट वेज, और दोनों से आंसर सेम आएगा. इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख लेना एक बार. पलक, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि ग्राउंड तो आपका परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, थोड़ा सा रफ फिगर से समझना पहले. पलक मित्तल, प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir. पलक, जैसे ही आपने ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करा कैपिटल एफ, तो ये तो चलेगा ही चलेगा आगे की डायरेक्शन में, और ये जो स्मॉल ब्लॉक है
इट शुड गो अलोंग विद दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक, दोनों साथ साथ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद देखोगे दे Yes. विल बी हियर। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता रहेगा और ये भी सीधा सीधा जाता रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये चाहती है कि दिस ब्लॉक शुड नॉट स्लाइड डाउन, ये स्लाइडिंग अवॉइड करनी है मुझे। यू एग्री विद मी? Yes, sir. क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है ना कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स सो दैट स्मॉल ब्लॉक शुड नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ कैपिटल। तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि दे आर मूविंग टुगेदर एज ए सिस्टम? पलक मित्तल, Yes, sir. मैं इनको एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लूं क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। स्मॉल m की स्लाइडिंग नहीं हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ कैपिटल, तो कैन आई कंसीडर एज a single system and let us say my system is accelerating with some acceleration a. Is it clear to you, Palak Mittal? Yes, sir. तो पलक अब ये दोनों ब्लॉक जब साथ साथ जा रहे हैं, हम ग्राउंड पे बैठ के देख रहे थे, तो कैन आई राइट डाउन की सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो F है ओनली, कैन आई से दिस F विल बी इक्वल टू सिस्टम का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर टू यू, पलक मित्तल? Yes, sir. अब पलक हम इस क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें समहाउ, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट और F की वैल्यू मिल जाएगी मुझे फर्स्ट इक्वेशन में। डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. अब पलक मैं एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके यहाँ पर बताऊंगा। आइदर यू कैन थिंक अबाउट द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं अभी। सबसे पहले हम ग्राउंड के फ्रेम में बैठ के सोचते हैं कि हमें क्या दिख रहा होगा। पलक, दिस वाज द ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसके ऊपर ये वाला छोटा वाला ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है? Yes. एंड हाउ मच वाज द दिस एंगल? Theta. दिस एंगल वाज थीटा। मैं सिर्फ स्मॉल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में अभी इंटरेस्टेड हूँ, तो जल्दी से बताइए, स्मॉल ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, देयर विल बी वन फोर्स व्हिच इज वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, Yes, sir. देयर विल बी नॉर्मल फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। यू एग्री विद मी? Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आप ग्राउंड पे बैठ के यहाँ से देख रहे हो, ग्राउंड पर हो आप, तो आपको ये स्मॉल ब्लॉक बड़े वाले के साथ साथ हॉरिजॉन्टल जाता हुआ दिखेगा अलोंग दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल। Yes, sir. अब आप मुझे ये बताइए, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या मुझे mg को रिजॉल्व करना चाहिए? mg तो वर्टिकली एक्ट कर रहा है। यू एग्री विद मी? Yes, sir. mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको मैं अभी डार्कन कर रहा हूं। तो पलक, आई कैन Sir. सी दिस एंगल इज आल्सो थीटा। एक मिनट पलक छाबड़ा, विल दिस एंगल नॉट बी थीटा आल्सो, पलक मित्र? Yes, sir. बिकॉज ये बीच वाला बचेगा 90 माइनस थीटा। यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो n का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट होगा थीटा के साथ वाला, N कैन आई cos से n theta. cos, एंड दिस वुड बी n sin N थीटा। sin. पलक मित्र, अब पलक आपको दिख रहा है कि ये छोटा वाला ब्लॉक बड़े के साथ साथ जा रहा है हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, तो इट इज n sin थीटा जो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रहा होगा। यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो कैन आई से कि n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Yes, sir. अच्छा, कोई चीज हॉरिजॉन्टल जाती हुई दिख रही है ग्राउंड पे बैठ के, तो वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस होंगे। दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स। कैन आई Yes, राइट sir. डाउन n cos N theta cos theta equal to mg. equal to mg? This is my third equation. Palak, if I divide these two equations second by third, can I say if I divide second by third, I will be getting n से n will get cancelled out, tan theta equal to a by g. तो वहां से मेरा एक्सेलरेशन जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? Tan theta g. g tan थीटा। तो पलक, अगर मैं इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन को फर्स्ट में पुट कर दूं, तो am I not getting the answer? जो मुझे फोर्स चाहिए था फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसमें। Will you not be getting required forces m plus m into g tan theta? Yes, sir. स्टूडेंट देखो, सिर्फ क्वेश्चन को ना खत्म नहीं करना होता, कुछ लर्न करना होता है। पहले आप पूरी क्लास ये लर्न करो कि आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से ग्राउंड पे बैठ के जो मैंने सॉल्व किया है, इज इट क्लियर और नॉट? पहले तो एक बार देखिए पूरी क्लास पे। यस अनहद? यस सर, क्लियर। अनहद, मैं ये चाहता था, मैं इस फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स so that small block does not slide on the surface of triangular block. Triangular block को wedge भी बोल सकते हो, it is also called as wedge. तो पहले ग्राउंड पे बैठ के जो मैंने सॉल्व किया, and I got the answer as m plus m into g tan theta. Is there any doubt, अनहद? नो सर। अनहद, मैं इस क्वेश्चन को अब दोबारा से सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ एक दूसरे तरीके से, वो जरूर समझना है सूडो फोर्स कैसे यूज होगा। एनी डाउट कि ग्राउंड के फ्रेम में जो मैंने सॉल्व किया उस आंसर में किसी को दिक्कत आ रही हो? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, भव्यांश, एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मैंने सॉल्व किया? भव्यांश?
Manita, any doubt here? Manita. No, sir, no doubt. Manita, I will discuss with you the further part. फॉर एग्जाम्पल मान्यता आप यहाँ ग्राउंड पे बैठ के अभी सॉल्व करके आए हो इस क्वेश्चन को और आपका आंसर आया m plus m into g tan theta. अब आप ग्राउंड से उठते हो और ट्रायंगुलर ब्लॉक पर सपोज यू सिट देयर. मान्यता, प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir. मान्यता, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर ब्लॉक. जल्दी से बताइए, क्या ट्रायंगुलर ब्लॉक आपका एक्सेलरेट नहीं हो रहा? मान्यता. Yes, sir. तो अगर आप ट्रायंगुलर ब्लॉक पे जाके बैठ जाती हो तो आर यू नॉट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम? मान्यता. Yes, sir. तो स्टूडेंट एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको सॉल्व करके सीखते हैं और सेम आंसर वी शुड गेट. मान्यता, दिस एंगल इज थीटा एंड लेट अस से यू आर सिटिंग ओवर हियर और आपका सिस्टम राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए. आप बैठ गए मान्यता नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो mg. जैसे फोर्स पहले लगाते थे मान्यता वैसे अब भी लगाएंगे. mg, there will be another force which is called as normal force here. You agree with me? Yes, मान्यता. Yes, sir. मान्यता, जैसे ऊपर लिया है नॉर्मल वैसे ही सेम लूंगा, mg भी लूंगा. अब आप मुझे ये बताइए, क्या एक एडिशनल फोर्स लेना चाहिए which is pseudo force here? I am waiting. Yes, sir. मान्यता, जल्दी बताइए, आपका सिस्टम यानी कि ये जो सिस्टम कंबाइंड है ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है? Is it not accelerating towards right? Towards right. Yes. तो इन विच डायरेक्शन आई शुड कंसीडर सूडो फोर्स? कहां लेते हैं सूडो फोर्स? अभी बताया था मैंने, लिखवाया भी है. वेयर वी कंसीडर द सूडो फोर्स? इज इट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन? Sir, towards left. यस, टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ये मेरा होगा सूडो फोर्स. यू एग्री विद मी? which is nothing but equal to mass of the block multiplied with acceleration of your frame, यानी कि triangular block जिसका acceleration था a. Is it clear to you? मान्यता. Yes, sir. मान्यता, जब तुम ग्राउंड पे ऊपर बैठ के यहाँ देख रही थी फर्स्ट केस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको ये पूरा कंबाइंड सिस्टम एक साथ हॉरिजॉन्टल जाता हुआ दिख रहा था. यू एग्री विद मी? Yes. थोड़ा प्लीज, फिजिक्स है, विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है. मान्यता, अब आप बैठी हुई हो ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर, आपको ब्लॉक कैसा दिखेगा? थोड़ा सोच के देखिए. ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहा एंड यू आर सिटिंग ऑन द ट्रायंगुलर वेज. आपको ये स्मॉल ब्लॉक व्हाइट कलर से जो ड्रॉ किया है कैसा दिखेगा? Will it not be in rest? मान्यता. Yes, sir. Because it is not sliding down. तो आपको दिखेगा रेस्ट में. अब कोई चीज रेस्ट में दिख रही है, so what should be the net force along any direction? Should it not be zero? Zero. तो Yes. मान्यता, आप देखो मैं सेम आंसर लाऊंगा बट आपको समझना पड़ेगा क्या करना है. एक काम करते हैं, नॉर्मल को रिजॉल्व करते हैं along horizontal, along vertical. मान्यता, this angle is theta, this angle is also theta. Can I say this component will be n cos theta, this component is n sin theta? Yes. तो n sin theta जो राइट में लगा है, क्या वो सूडो फोर्स से बैलेंस आउट नहीं होगा क्योंकि सिस्टम आपको रेस्ट में दिख रहा है? यू Yes. एग्री विद मी? Yes. सो वन इक्वेशन आई कैन राइट डाउन कि n sin theta, देखो इक्वेशन सेम है, ध्यान से मेरी ऊपर वाली इक्वेशन को देखो. वहां n sin theta was providing ma क्योंकि आपको ब्लॉक चलते हुए दिखाई दे रहे थे. इन द सेकंड इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, n sin theta was providing ma. एंड मान्यता, जो नीचे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, n sin theta is equal to ma, यहाँ n sin theta is balanced by ma. You agree with me or not? Yes, sir. I agree. And in vertical direction, upward force is n cos theta, which will balance mg. तभी तो जब vertical force भी balance होगा, horizontal will also be balanced, तभी तो आपको ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा एक जगह. तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को भी डिवाइड करती हो, if first equation divided by second, can I not say tan theta equal to a by g? Again आपका आंसर सेम नहीं आया, a equal to g tan theta. Yes, sir. So चाहे हम ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करें क्वेश्चन को या हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करते हैं, अगेन जब मुझे आंसर लिखना होगा नेट फोर्स अप्लाइड का, दैट विल बी इक्वल टू m plus m total mass into acceleration, and acceleration I have got g tan theta, that's why this will be the answer. Student, this is the another method. We are getting same answer चाहे हम ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करते हैं. ये आपका आंसर ग्राउंड पे बैठ के था, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक पे बैठ कर. अब किसी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज नाउ यू कैन आस्क. क्या किया है मैंने एक बार. यस रिद्धिमा, यू वांटेड टू आस्क समथिंग. रिद्धिमा, Understood, sir. everything is cleared. How we have to think about the pseudo force? Yes, sir.
अनहद एक बार आप इंश्योर कीजिए, सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं, सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अनहद, यस सर। व्हाट अबाउट अंशदीप, धृति, एक बार पूछ लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कहीं डाउट है, यू कैन प्लीज आस्क। यस पलश छाबड़ा, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? पलश छाबड़ा, सर हो गया, वो आपने समझा दिया बस। बस देखो कुछ Please. करना ही नहीं है। देखो Yes, ग्राउंड sir. पे बैठ के हमें दोनों ब्लॉक साथ साथ जाते हुए दिख रहे थे, थोड़ा इमेजिनेशन की आदत नहीं होगी, आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट ही नहीं बना है। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, जिस स्टूडेंट में इमेजिनेशन की स्किल्स अभी तक डेवलप नहीं हुई, फिजिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी प्लीज, नहीं तो डेवलप करो। आपको ग्राउंड पे बैठ के दोनों ब्लॉक साथ साथ जाते हुए दिखेंगे, तो उसी फील के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक, तो हमें ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा, फिर उसी फील के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इनकॉर्पोरेट करा एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है सूडो फोर्स। हाँ जी, एक बार क्लियर कीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है? चाहना मलिक, इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. Yes. तो इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए सिंपल सा पहले। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, वन लाइनर क्वेश्चन स्टूडेंट, तो थोड़ा लगे कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। मेरा डाउट रहेगा, मेरी बातचीत होगी। देव घाकड़, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? देव घाकड़, देव। यस सर। देव, मेरा एक डाउट है या क्वेश्चन, कुछ भी कह लें। एक ट्रॉली है जैसे यार ये, ठीक है? देव घाकड़, यस सर। देव, एक ये ट्रॉली थी एंड दिस ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है? और इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा था ए। देव, इसमें ना एक पेंडुलम लगा हुआ था जैसे, काइंड ऑफ, ये एक पेंडुलम लगा हुआ था। जब हमारी ट्रॉली राइट की तरफ एक्सेलरेट होगी तो पेंडुलम ऐसे ही रहेगा या कहीं राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा? इफ आई आस्क यू, थोड़ा इमेजिनेशन से ही चीजें आ जाती हैं। देव घाकड़, आई एम आस्किंग यू। हाँ जी सर मेरा पेपर है सर फिजिक्स का 13th को, और ये वाला चैप्टर आ रहा है, इसकी हाँ रिकॉर्डिंग भेज दोगे मुझे? हाँ जी, सब मिल जाएगी, पहले क्वेश्चन तो करते रहे हम। हाँ जी देव घाकड़, मेरा आपसे क्वेश्चन चल रहा था कि अगर हमारी ट्रॉली राइट में एक्सेलरेट करती है तो पेंडुलम एज इट इज रहेगा या शिफ्ट होगा कहीं राइट लेफ्ट? सर मैं बताऊं, शिफ्ट होगा। हाँ जी पलश छाबड़ा, आप बताइए। सर लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट की स्टार्ट तरफ हो रही है। हाँ जी, रेस्ट लेफ्ट की तरफ स्टूडेंट इसलिए जाएगा बिकॉज इसको एक सूडो फोर्स मिलेगा पीछे की तरफ जाने के लिए। पलश छाबड़ा, आप मेरी बात से एग्री करते हो ना? यस सर। तो पलश, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर ये ऐसे चला गया सपोज, और वर्टिकल के साथ इसका एक एंगल बन रहा है इस टाइम थीटा, थीटा। so I am asking you कि in the figure shown at an angle, दो लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, at an angle theta with vertical, particle is in equilibrium. Find out the angle theta. Very easy question, student. नेहल अग्रवाल, आपको सूडो फोर्स समझ में आ रहा है? कब कंसीडर करते हैं नेहल अग्रवाल? यस सर। तो नेहल थोड़ी हेल्प कर दो मेरी इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को? यस जस्ट 1 सेकंड सर। अभिवंदन टंडन, आपसे भी मुझे जानना है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभिवंदन, यस सर। देखो आंसर भी आ गए लोगों के। यस अभिनव सागर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस तरनजोत, एनी आंसर? तरनजोत, Sir, I'm trying. तरनजोत ये समझ में आ गया सूडो फोर्स कब लेते हैं, एक बार बताओ। Yes, sir. तरनजोत, जब भी हम किसी चीज को एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, जैसे ये ट्रॉली के अंदर है, फॉर एग्जांपल वी आर इनसाइड द ट्रॉली, तो क्या हम सूडो फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज हमारी ट्रॉली एक्सेलरेट हो रही थी? यस सर। Yes, तरनजोत, सर पेंडुलम चल- का मास नेग्लिजिबल लेना। देखो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर मैं मास m ले लेता हूँ तो क्या मैं सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लूंगा? पलश छाबड़ा, जल्दी बताइए। यस सर। अगर पेंडुलम का मास m है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में बच्चे, और एक इधर की तरफ लगेगा वेट mg। यू एग्री विद मी? यस सर। और स्ट्रिंग में टेंशन होगी T। टी। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, जब आपको फोर्सेस इक्विलिब्रियम में बैलेंस दिखते हैं
तो जल्दी से बताओ, ये वाला एंगल तो थीटा है, ये वाला एंगल तो टी का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी cos थीटा। बस पिछले क्वेश्चन जैसा तो है, टी sin थीटा। कैन आई नॉट से t sin theta will be balanced by pseudo force and t cos theta will be balanced by mg? So it is just like the previous question. और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. If you divide first by the second equation, simply you will be getting tan theta equal to a by g. So that's why acceleration is equal to g tan theta. Any या tan theta चाहिए था a by g, चलिए जो भी है, ठीक है. प्रांजल गुलाटी, इज इट क्लियर टू यू? प्रांजल एक बार बताइए, सूडो फोर्स कब कंसीडर करते हैं, क्या हमें समझ में आ रहा है? प्रांजल गुलाटी. Yes, sir. So Pranjal angle with the vertical direction will be tan inverse a by g. Any doubt student up to this point? एक बार देखिए ध्यान से. Any doubt here? चलिए मैं थोड़ा सा इसमें सूडो फोर्स की और कहाँ एप्लीकेशन आ सकती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो कराऊंगा. Any doubt? Anybody has? Yes, मान्यता. कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो. मान्यता. No, मान्यता, देव खाकड़, देवांगर, चिरायु. Any doubt here? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए एक कंसेप्ट है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, उसमें बहुत ज्यादा सूडो फोर्स का आप यूज कर सकते हो, उस पर क्वेश्चंस आते हैं. तो एक यहीं पर मैं सूडो फोर्स के थ्रू एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट इज रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. हाँ जी, आप लोगों ने स्कूल में तो किया ही होगा. पलक मित्तल प्लीज बी ऑन द लाइन. पलक मित्तल. यस सर. पलक, क्या क्या कर रखा है स्कूल के अंदर? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ जरा. हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? प्रांजल गुलाटी एमवीएन में किया हो? यस प्रांजल. यस प्रांजल, एम आई ऑडिबल? अच्छा, जब ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो इनका माइक इशू आ जाता है. चलिए मैं डिस्कस करूंगा. पलश छावड़ा एक बार लाइन पर आए. पलश छावड़ा. यस सर. पलश कैसे निकालते हैं रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, उस बात को समझना है. जब बच्चे आप वेट मशीन पर खड़े होते हो तो आपका वेट जो है वो मेजर हो रहा होता है. यू एग्री विद मी ना पलश छावड़ा? यस सर. तो पलश, पहले मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ये, एंड ही इज स्टैंडिंग on a weighing machine. This is your weight machine. If this person is having mass m, तो इसके ऊपर एक force लगेगा mg, and Yes, that sir. mg will be balanced by normal force. Normal You से agree with होगा. me? यस सर. अच्छा जी. अच्छा ये बताओ, जितना नॉर्मल वेट मशीन आपकी बॉडी पर एक्सर्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्शन की रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती है. अगर आपकी बॉडी पर नॉर्मल ऊपर लगा है तो वही नॉर्मल एक्सपीरियंस करेगी नीचे वेट भी मशीन. यस. तो बच्चे जो वेट मशीन रीडिंग देती है ना, वो ऑलवेज नॉर्मल के कॉरेस्पॉन्डिंग देती है. जितना उसने नॉर्मल एक्सपीरियंस किया वही रीडिंग है एक तरीके से. यू एग्री विद मी? यस सर. जितना हमें नॉर्मल मिला या उसने नॉर्मल एक्सपीरियंस. यस. इस लाइन को मैं अलग से यहाँ मेंशन जरूर करूंगा. आई एम राइटिंग डाउन weighing machine always gives the reading corresponding to normal force. चलिए आप आ जाइए. क्या कहते हैं पलक मित्तल, एक बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ Yes, जल्दी sir. से. तो पलक, क्या मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जितना आपने नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया होगा दैट मच न्यूटन्स, अगर आपको न्यूटन्स में आंसर देना हो. पलक मित्तल, एग्री करती हो Yes, मेरी बात से? जैसे इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल किसके इक्वल है? इज इट नॉट इक्वल टू mg? तो इस एग्जांपल में तो नॉर्मल mg के इक्वल था, तो आपका एक्चुअल वेट आ जाएगा mg. मान लीजिए 50 kg है तो 500 न्यूटन. लेकिन अगर आपको किलोग्राम में आंसर देना है तो क्या करोगी? n को g से डिवाइड कर देंगे, तो दोबारा से किलोग्राम में आंसर आ जाएगा. पलक मित्तल, Yes. तो Sir, वो कभी भी मास ही हम, तो हो गया सर. हाँ वो मास ही होगा. लेकिन इस एग्जांपल के अंदर कुछ और केस है, तो मैं अभी बना के दिखाऊंगा. कुछ इट कुड बी डिफरेंट. पलक मित्तल,
Okay. तो कुल मिला के जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है दैट इज ऑलवेज शोन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फोर्स। आप नॉर्मल निकालिए और उसको अगर न्यूटन में आंसर देना है तो नॉर्मल इज द आंसर, और इफ यू हैव टू गिव द आंसर इन किलोग्राम प्लीज डिवाइड बाय द फैक्टर ऑफ जी। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? एक बार बताइए, मशीन जो रीडिंग देती है दैट इज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल फोर्स। अब ये रीडिंग कैसे चेंज हो सकती है पलक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ केसेस बनाते हैं इसके। पलक मित्तल, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन पहले ग्राउंड पे था, इसका एक्चुअल मास 50 केजी था, तो रीडिंग आ रही थी या तो 500 न्यूटन या 50 केजी। यू एग्री विद मी? Yes. सपोज मुझे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालनी है यहाँ पर। इफ पर्सन इज, अब कुछ केसेस बनाऊंगा यहाँ पर। इफ पर्सन इज इनसाइड द लिफ्ट, if person is inside the lift, अगर एक पर्सन लिफ्ट के अंदर है तो आपकी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी आएगी? तो उसके डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। तो पलक सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, इफ योर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो एक बार ध्यान से समझना, और उसके आपके पास दो चॉइस होंगी। यस स्टूडेंट, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी का डाउट आ रहा था अभी शायद? चलिए पलश छावला आप आ जाइए बच्चे लाइन पर। पलश छावला। यस सर। पलश फॉर एग्जांपल ये आपकी वेट मशीन है और अंदर एक पर्सन है इस वेट मशीन के ऊपर, ठीक है? और उस पर्सन का लेटेस्ट से मास है m एंड दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो जल्दी से बताइए रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी आएगी? हाँ जी देखिए, सर, मैं ग्राउंड mg मैं चलिए एक सेकंड मान लो बाहर ग्राउंड से बैठ के देख रहे थे, ठीक है? तो ये तो Yes, नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर मैन के ऊपर। यस सर। और बेटा मैन का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यू Yes, एग्री विद मी? तो Yes, जब आप sir, और- बाहर से ग्राउंड से बैठ के देखते हो तो आपको ये पर्सन लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यस You सर, और agree n with me? माइनस mg इक्वल्स टू m हो जाएगा। यस, n माइनस mg होगा नेट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू ma। तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? विल इट नॉट बी m into mg g प्लस? यस सर। यू एग्री विद मी? तो Yes. ध्यान से सुनो, जब हम ग्राउंड पे थे तो हमारी रीडिंग क्या थी? mg। जब हम ग्राउंड पर स्टेशनरी थे तो आवर रीडिंग mg। वाज वेट की थी, नॉर्मल की थी mg। क्या ये इंक्रीज नहीं कर गई पलश छाबड़ा? सर ऊपर जा रहे होंगे तो इंक्रीज और नीचे आ रहे Yes. होंगे तो डिक्रीज। तो क्या मैं इस आंसर को अगर किलोग्राम में देना हो तो कहना इससे कि मेरी जो रीडिंग आएगी दैट वुड बी m प्लस m है। that would be m into g plus a, जो नॉर्मल निकाला है इन द यूनिट ऑफ न्यूटन्स। और Yes, अगर okay. मुझे किलोग्राम में आंसर देना है तो आई विल डिवाइड बाय द फैक्टर ऑफ g। सो विल आई नॉट से m into 1 plus a 1 by प्लस g, a। यस सर। this much kilograms। तो कुल मिला के ये बताइए पहले के कंपैरेटिवली क्या आपका वेट इंक्रीज नहीं हो गया? हाँ जी। यस सर, इंक्रीज हो गया। तो पहले क्योंकि mg था, अब mg में ma और ऐड हो चुका है। तो कुल मिला के इफ योर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड तो आपकी जो मशीन है वो हायर रीडिंग शो करेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अग्रिमा, अग्रिमा, Yes, sir, इज इट clear. क्लियर? हाँ जी, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं एक बार, एनीवन ऑफ यू? देखो एक बात बताओ, चेतन आनंद प्लीज बी ऑन द लाइन। चेतन, चेतन आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप बाहर यार ग्राउंड से बैठ के देख रहे हो, ये बताओ ये पर्सन है अंदर, नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नहीं? चेतन, यस सर लगेगा। वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप बाहर से, यू आर द ऑब्जर्वर हियर, आपको ये पर्सन लिफ्ट वाला जो है ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा? चेतन, यस सर। अब आप यू टेल मी हाउ मच इज द नेट फोर्स ऑन द मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन? हाउ मच इज द नेट फोर्स? Upward force is n, downward force is mg. So will I not say net force is n minus mg? Yes. यस सर। Chetan Anand, so net force है n minus mg. Will it not be equal to mass into acceleration? That's why normal आएगा आपका m into g plus a. Is it cleared or not? Chetan. यस सर, नाउ क्लियर। Any doubt here students? एक बार पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के if the lift is accelerating upward आपकी रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। Instead of mg it will be mg plus ma. Any doubt Pranjal Gulati? Yes Pranjal. Pranjal, is there any doubt? If lift is accelerating upward, और जल्दी से बताइए if lift is accelerating downward तो क्या आंसर आएगा? Can I write down directly students? सर तब m
MA माइनस MG होगा। देखो यार, लाओ मैं ही बता देता हूँ। mg माइनस ma होगा सर। mg माइनस ma लिख दूं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा और अगर किस, देखो 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 कुछ भी नहीं है इसमें। पलश छाबड़ा, if your lift is accelerating downward, यस MG माइनस n इक्वल्स टू MA। there is a person inside, normal लगेगा upward direction में, you agree with me, and mg is acting in Yes, downward sir. direction, and your lift is accelerating in the downward Downward. direction. तो ये बताइए जल्दी से, नेट फोर्स mg डाउनवर्ड minus डायरेक्शन में n। लगेगा। हम Yes, ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं mg माइनस n and that should MA। be equal to ma, so will normal not be equal to mg minus n या Yes, m sir, into MG। g minus? तो बच्चे जी। जो रीडिंग हम लिखेंगे यहाँ पर, what will be the reading of weighing machine? सर kg में होगी m1 अगर आपको minus न्यूटन्स a में by देनी g। है तो यू कैन राइट डाउन, न्यूटन में अगर आंसर देना है तो mg माइनस m में, So यही होगा। और kg में तो m into m 1 into minus 1 a by माइनस g। a अपॉन g किलोग्राम्स। Yes, तो sir। कुल मिला के दोनों केसेस क्लियर हैं कि नहीं? Yes, यस। sir। तो पलश, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, वेट इंक्रीज हो जाएगा, एंड इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इट विल Weight डिक्रीज। decrease। Yes, sir। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ ये छोटी सी बात कर लेता हूँ पलश छाबड़ा, Okay, अगर sir। मेरी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, देन व्हाट विल हैपन? सर सेम ही रहेगा वेट। स्टूडेंट यहाँ समझ लेना, अगर आपकी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इट मींस एक्सेलरेशन So इज जीरो। force, yes sir, Yes. F net 0। Yes, if lift is moving with constant velocity, तो वेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। You can say directly reading will be equal to mg. mg और mass would be m। Okay, mass in kg would be m। mg न्यूटन्स, या आप कह सकते हो m किलोग्राम्स। मान्यता, दिस पॉइंट इज क्लियर? जो थर्ड केस बताया मैंने, मान्यता। Yes, sir. एंड मान्यता, फोर्थ केस, if lift is freely falling, ये फ्री फॉल का क्या मतलब है? यस चाहना मलिक। Sir, इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, उस केस में हमारी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी होगी? यस चाहना। sir, 0. सर Zero। जीरो हो गया। जीरो कैसे हो जाएगी? एक बार एक्सप्लेन कर दो पूरी क्लास को। सर मैं बताऊं? एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन इनसाइड, तो आपकी लिफ्ट फ्री फॉल का मतलब है पलश की सर जी की स्पीड एक्सेलरेशन से। जी के इक्वल होगा। यस, जी Yes, की sir। स्पीड नहीं, जी के एक्सेलरेशन से। यस सर, हाँ सॉरी। mg जी। नीचे लगेगा, नॉर्मल इज एक्टिंग अपवर्ड, तो आपको डाउनवर्ड इक्वेशन दिखेगी mg माइनस n, एंड दिस विल बी इक्वल टू ma, और ma भी mg के इक्वल है, mg तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में बेटा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी आएगी? विल इट नॉट बी सर 0? जीरो। एंड दिस इज द कंडीशन व्हिच वी कॉल एज वेटलेसनेस। तो इफ द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, तो उस केस में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट एक बार फटाफट फास्ट देखिए कि आपको ये ऑल फोर केसेस आर क्लियर्ड और नॉट। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन, फ्रीली फॉलिंग एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑल द फोर केसेस आर क्लियर्ड। चेतन आनंद, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चेतन, धृति, एनी डाउट हियर? धृति, Yes. धृति, आर यू कंफर्टेबल इन ऑल द फोर Okay. केसेस? यस धृति, Yes, sir. चलिए तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर। स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल करेंगे, हाउ टू गेट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। पलश छाबड़ा, प्लीज बी ऑन द लाइन वंस अगेन। पलश, यस सर। पलश, अब मैं डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो दूंगा नहीं कि मैन को खड़ा कर दिया है लिफ्ट में, तो वो तो Yeah. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लिफ्ट या बॉक्स है कुछ, ठीक है? ओके सर। देयर इज अ बॉक्स हियर एंड पुली। हाँ जी, there is a pulley, a string is connected with box which is passing over pulley, and there is a hole here at the top, और उसके अंदर दिखा दूंगा मैं एक मैन, ठीक है? ओके सर। There is a man here inside, and this man is holding one end of the rope,
and this man is further standing on a weighing machine. This is the weighing machine. ठीक है? Okay, sir. We are given mass of box. जिस box के अंदर आप हैं, that box is having mass. Let us say कुछ भी assume कर लो, 60 kg. 60 Okay, kg ले sir. लेते हैं. And mass of man is 70 kg. और सर एक्सेलरेशन कुछ दी हुई है? नहीं जी, अभी हमने होल्ड किया हुआ है, so that पूरा सिस्टम अभी रुका हुआ है Equilibrium rest में में। एक तरीके से. Yes. यार So we have to क्या? find out कि मशीन कितने रीडिंग शो करेगी. Yes, sir. Okay, sir. स्टूडेंट इसको कीजिए. If the entire system is in rest, then find out reading shown by the weighing machine. अंशदीप ये टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? अंशदीप, Yes, sir. हाँ जी, तो जल्दी से मुझे आंसर भेजें चैट बॉक्स पर. व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग कि मशीन कितना रीडिंग शो करेगी? Okay, sir. सर मैंने भेजा है. वेट, अभी वेट करें पलश छाबड़ा. मुझे क्यों लग रहा है कि आपका आंसर रॉन्ग है पलश? हाँ सर वो कुछ गलत कर गया था. अभी वेट करें प्लीज, अभी ट्राई कुछ टू सॉल्व करें दोबारा से. यस प्रांजल गुलाटी, एनी आंसर? So I'm solving. Just a second. यस हरजोत, आपको टॉपिक क्लियर है पहले? हरजोत सर मेरी ना चैट में लिख नहीं पा रहा, चैट खोलते ही ग्लिच हो जाता है. यस, एनी आंसर? किफाया. So I'm solving. Student, you are given if the entire system is in equilibrium, what is the reading shown by the weighing machine? Either you can send me the answer in kilogram or in Newton. That is up to you. मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट्स? एक बार बताइए. Sir, mine is showing Sir, 2 minutes. chat box is not able to receive the answers. Who is Maneta? Yes, sir. I have received your answer, but Okay, sir. Maneta, this question is very easy. Okay, fine. चलिए मैं एक बार डिस्कस करूंगा this question. Maneta, can you please be on the line so that I can discuss with you? Yes, sir. Student, this is your choice totally. Either you can draw the free body diagram of only box, only man, या third option could be of both combined box plus man. That is up to you. तो अगर मैं combined लेके एक बार solve करता हूँ, Maneta, can I show T is tension in the string first of all? Yes, sir. And T tension here on the box also. You agree with me? Yes. This arrow is on man and this one arrow is on box. So how much is the total vertically upward force, Maneta, on combined man plus box? On combined man plus box. मैं इसकी बात करूंगा. Yes, Maneta. Sir, 2T. 2T. And tell me how much is the total vertically downward force? Will it not be the combined weight of both? Sir, 1300 Newton. 1300, because total mass is 130 kg. So can I say 2T will be balancing 1300? So that's why tension is how much? Will it not be 650 Newton? Yes, Maneta, you agree with me? Yes, sir. Now, Maneta, the thing is we have to find out reading of the weighing machine, and reading is always corresponding to the normal force. थोड़ा यहाँ समझना, आपका जो मैन है वो बॉक्स के ऊपर तो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा नॉर्मल, but same normal will be acting on the feet in upward direction. Yes, Maneta.
Yes, sir. If I consider the separate free body diagram of man only now, combined में तो normal cancel हो जाता है, but separately लेना पड़ेगा. So can I say this tension on the hand of the man was 650 Newton? And how much is the weight of the man? Is it not 700 Newton? Sir, it's 600. Manyata. Oh, 700, yes. sir. 70 kg was the weight of the mass of the man. So now there will be normal force also. So will I not write down for the equilibrium 650 plus n is balancing the downward force of 700. So will normal not be equal to 50 Newton? Manyata. Yes, sir. So student, our answer will be reading of weighing machine is either you can write down 50 Newton और अगर आपको किलोग्राम में आंसर देना है, then it will be reading of weighing machine is 50 upon g. That's why 5 kg only. तो देखा पलश छाबड़ा, मैन का एक्चुअल मास तो था 70 kg और अब हमें विदाउट एक्सरसाइजेस लग रहा है कि सिर्फ 5 kg मास रह गया. पलश छाबड़ा. Yes, sir. So is the question completely clear to all of you? एक बार बताइए किस Yes, तरीके से sir. मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. Yes, Agrima Agarwal, is it clear to you? Agrima Anirudh Vats. Yes, sir, Agrima, clear. clear. Anirudh, is there any doubt? Anirudh, एक बार पूरी क्लास इंश्योर करे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है कि किस तरीके से सॉल्व किया है. सो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन विल बी सिंपली इक्वल टू द 5 kilograms only. Any doubt, Pranjal Gulati? Yes, Pranjal. No, sir. प्रांजल, अब मेरा डाउट जरा क्लियर कर देना और अगर टाइम नहीं है तो घर से सॉल्व करना, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर चाहिए. सपोज अच्छा पहले मैं इसी में बात कर लेता हूँ. प्रांजल, राइट नाउ ये जो मैन है ये टेंशन कितनी एक्सर्ट कर रहा है इस रोप के ऊपर? इज इट नॉट 650 न्यूटन राइट नाउ एज वी हैव गॉट? प्रांजल, Yes, sir. सपोज दिस मैन वांट्स टू सी द एक्चुअल रीडिंग. एक्चुअल रीडिंग का मतलब है इसको अपना मास कितना देखना है. इज इट नॉट 70 kg? यस प्रांजल, Yes, sir. दिया हुआ है 70 kg. दिया हुआ है. तो क्वेश्चन इज कि नाउ हाउ मच फोर्स दिस मैन शुड अप्लाई ऑन द रोप सो दैट ही कैन सी द एक्चुअल रीडिंग शोन बाय द मशीन. आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? Sir, एक बार आप समझाएं. आई एम राइटिंग डाउन दिस क्वेश्चन और स्टूडेंट मुझे इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में एनी हाउ चाहिए. इन द प्रीवियस क्वेश्चन find out how much force the man should apply on the rope. On the rope to see actual reading shown by the machine. Sir, acceleration दी हुई है, निकालनी होगी. वो तो निकालनी पड़ेगी. Okay, sir. स्टूडेंट देखिए आज की क्लास में सूडो फोर्स हमने कैसे लिया था उसके कुछ अभी एक क्लास में मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा. थर्सडे अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन दिखा दो तब जाके चैप्टर फिनिश होगा न्यूटन्स लॉ का. फिर मैं स्टार्ट करूंगा सैटरडे से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे. पहले आप अच्छे से देखिए कि आज क्या क्या कराया है और प्लीज बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट क्लास में हम सूडो फोर्स की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन. प्रियांश अरोड़ा, एक बार देखिए आपको सारी चीजें क्लियर है? प्रियांश अरोड़ा. Yes, sir. व्हाट अबाउट यू? नव्या, नेहल, एवरीथिंग इज क्लियर? नव्या, अच्छा देखिए मुझे एक चीज मैंने आपको मैसेज डाला था टू एवरीवन. इट हैज बीन 3 to 4 months की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. कोई एक दो स्टूडेंट दिल्ली रहते हैं, उनका एक सेपरेट इशू है, बट अदर देन दोज स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन रखना है. सो व्हेनेवर टाइम सूट्स यू या जो टाइम मेरे लिए भी कॉमन हो, व्हाट्सएप पे वी कैन डिस्कस एंड आई थिंक वन इंटरेक्शन वी शुड हैव एज अर्ली एज पॉसिबल. और ये मैसेज सबके लिए है so that at least I should get an idea कि how you are studying, कहाँ पर आपको issues है, कहाँ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही. एक बार पता तो चले is there any discipline in your studies or not.
सर हाँ जी, सर मेरा पेपर है 13 को, तो अब इसकी बाकी की रिकॉर्डिंग्स भेज दोगे आगे की लॉज ऑफ मोशन की? चलिए मैं देखता हूँ अभी। तारुष क्लास के बाद एक बार ना फोन पर बात कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको सॉल्व कीजिए एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू सर।